Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today is a very special email dedicated episode because all the viewers want Premji's guidance, remedies, and solutions, and we only have a limited time. So we dedicate sometimes maybe once or twice or even 3 times in a month a email specially dedicated episode. So let's find out who sent in the first email for today. और Premji आज की पहली email जो आई है. This is from Mr. YT. His date of birth is Feb 7th, 1985. Place of birth is Karachi, Pakistan. Time of birth is about 6 in the evening. He wants to know what is the best remedy for him to bring happiness in his life. He's going through a lot of financial and mental problems. And what can he do for his financial life and be a happy married life as well? मिस्टर वाइटी, अगर आप फरवरी 7, 1985 इनका कराची से इन पाकिस्तान का 6 बजे का जन्म है. इनका कर्क लगन है और जिसमें इनकी सिंह राशि है. कर्क लगन का लॉर्ड होता है चंद्र जी. राशि का लॉर्ड है सूरज. कैंसर राइजिंग है और मून साइन लियो है. और इनको दशा चल रही है राहु की 2016 सितंबर से लेके जो कि 2034 सितंबर तक रहने वाली है. राइट. अब राहु जो है वो चंद्र को भी ग्रहण देता है और सूरज को भी ग्रहण देता है. तो लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स दोनों बेसिकली इनकी लाइफ में चल रहे हैं. तो मून की वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि मून इज़ माइंड. सूरज सक्सेस लॉर्ड है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है. तो अनफॉर्चुनेटली टाइम जो है इनका 2034 सितंबर तक का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. पर जैसे ही उसके बाद इनको जुपिटर की दशा आ जाएगी तो लाइफ का जो पाथ है वो काफ़ी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा. तब तक का जो पीरियड है ख़ास करके स्पेशली जो 2028 से जो 33 तक का वो काफ़ी टफ़ है. तो ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल. थोड़ा अपने आप को मेंटली बैलेंस करके रखें. So Premji, what would you recommend as remedies for him to do? देखिए, इनको एक तो जो है पर्ल पहन के रखना चाहिए जिससे ये अपने लग्नेश लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करें. Okay. अपनी राइट हैंड की लिटिल फिंगर में सिल्वर में उसको मंडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने. Right. जिससे जो है लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. सूर्य ग्रहण को करने के लिए इनको जो है ब्लाइंड लोगों को हेल्प करते रहना चाहिए. अच्छा. किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन पे आप डोनेशन दें जहाँ पे भी आई सर्जरी की जाती है तो उससे जो है काफ़ी बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेंगे. मंडे और संडे के दिन इनको वेजिटेरियन रहना चाहिए. ही शुड प्रे मोर. जो जिस तरह की प्रेयर आप करते हैं और अपनी मदर का आशीर्वाद लें. अगर वो आपसे दूर है तो उनकी कोई चीज़ें अपने पास रखें तो उससे जो है चीज़ें थोड़ी काम डाउन होनी शुरू हो जाएंगी. ही जस्ट हैज़ टू बेसिकली फेस दिस राहु दशा. बट व्हाट विल डू इज़ बारिश और तूफान तो होगा पर इससे इनके ऊपर अम्ब्रेला आ जाएगा. Thank you, Premji. So like Premji is saying that, you are going through a lot of turbulence in your financial life, health life. And what Premji is recommending is to do the remedies by wearing the pearl because that will calm down the planets for you. And if you can take your mom's Ashirwad, if she's not around or away from you, something that belongs to her can be always kept with you besides the other remedies that Premji has mentioned. And you are going to go over the turbulence and things will turn around for you. Or dosto, ab waqt aa gaya for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ और लर्निंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए. एंगेज रखें अपने आप को नई एक्टिविटीज़ में जिससे आपका जो नॉलेज है वो एक्सपैंड करे. इस वीक में ये अच्छा टाइम है आपकी पर्सनल चीज़ों को अगर आप पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं. थोड़ा माइंडफुल रहिएगा अपनी हेल्थ को लेके, खास करके अपनी एनर्जी लेवल को लेके. रिलेशनशिप जो आपके क्लोज फ्रेंड के साथ वो और भी डीपन हो जाएगा. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, बजटिंग जो है वो की है इस वीक का. कंसीडर करिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सेविंग को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए. अवॉइड करिएगा किसी तरह का भी कोई जल्दी में डिसीजन मत लीजिएगा.
जिसकी वजह से कुछ जल्दबाजी में नहीं तो पैसे का नुकसान हो सकता है। काम के ऊपर आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर चीज़ें और भी स्ट्रांग हो जाएंगी, रिलेशनशिप इन लोगों के बेटर हो जाएंगे। काम एंड स्टडी अप्रोच जो है वो काफ़ी बड़ा सक्सेस लेके आएगा। Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, आप लोगों का फोकस करियर ग्रोथ और जो भी स्ट्रेटिजिक जो है डिसीजन की तरफ रहना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल जो हैं पहले से बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। थोड़ी अटेंशन अपनी हेल्थ को और अपनी वर्क लाइफ के बैलेंस को भी इनको देनी चाहिए। देयर विल बी अपॉर्चुनिटी कि आप ट्रैवल करेंगे, नए कनेक्शंस बनेंगे। रिलेशनशिप फैमिली के साथ थोड़े सी आपको अटेंशन की ज़रूरत है। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, आपके जो गोल्स हैं उसके ऊपर आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। वो आप फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं, फोकस बनाइए, एक्सपैंड करिए अपनी नॉलेज को। या कुछ लोग जो हैं एजुकेशन की तरफ भी जाएंगे। ये अच्छा वीक है स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर पीस के लिए। थोड़े जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी है वो काफ़ी हाई रहेगी, एक्सप्लोर करिएगा, जिससे आपकी जो जो भी आर्टिस्टिक हॉबीज़ हैं उसके ऊपर आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। थोड़ी पेशेंस बना के रखिए। फैमिली मैटर्स जो है उनके साथ थोड़ा कम्युनिकेट ओपनली करिएगा। This is from Miss NB. Her date of birth is December 5th, 1972. Place of birth is Vadodara, Gujarat, India. Time of birth is about 11:46 a.m. Her question about her life is that she always feels worried about her kids, and she's also worried about the future, what it holds for her. So are there any remedies or guidance that you can tell her to do? देखिए मिस एनबी, अगर आप दिसंबर 5 1972 वडोदरा गुजरात, इनका 11:46 AM का बर्थ है। इनका कैप्रिकॉन राइजिंग है, मून साइन इनका स्कॉर्पियो है, मकर लगन है और वृश्चिक राशि है इनकी। मकर लगन का लॉर्ड है शनि, राशि का लॉर्ड है मंगल। एंड जन्म पत्री में इनको दशा चल रही है इस वक्त सूरज की। एंड सूरज जो है वो शनि का बेसिकली मित्र नहीं होता, शनि लॉर्ड है। तो सूर्य ग्रहण एक तरह से चल गया, शुरू हो गया। Acha. अब सूरज की दृष्टि है 5वें स्थान में, 5वां स्थान है संतान का। तो 5th हाउस में संतान को लेके इंसान बहुत चिंता करता है। जबकि शनि 5वें स्थान में हो बच्चों के एरिया में, तो वहाँ पे वो आपके बच्चों को एजुकेशन और अच्छी चीज़ों में लेके जाता है। बट सूर्य और शनि की दृष्टि की वजह से कई बार आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग या रिलेशनशिप को लेके हम काफ़ी वरीड हो जाते हैं, या उनके फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो सूर्य दशा 2021 से चल रही है, जो कि 2027 अगस्त तक रहने वाली है, तब तक का जो इनका टाइम है अपनी संतान को लेके, इन चीज़ों को लेके इनकी जो वरीज जो है वो बड़ी रहेंगी। और उसके आगे भी इनको चंद्र दशा है, तो मून इज़ ऑल्सो बेसिकली नेगेटिव टू सैटर्न, विष योग क्रिएट करता है। तो इमोशनली थोड़ा इनको अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ओवर थिंकिंग मत करें। कई बार लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी नहीं होती, हम उसमें ज़्यादा ढूंढना शुरू कर देते हैं। So then, Premji, any remedies or guidance for her? देखिए, एक तो इनको जो है किसी भी ब्लाइंड स्कूल में जो है डोनेशन देते रहना चाहिए। Acha. जहाँ पे भी ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाया जाता है, या I see. ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं, साल में एक बार वो करें। और एक एमरल्ड पहन के रखें 5 to 6 कैरेट का अपनी लिटिल फिंगर में, सोने में बुधवार के दिन, जिससे लग्नेश लॉर्ड को हेल्प करेगा। बुध जो है शनि को करता है, वो सूरज को भी सपोर्ट Correct. करता है। दैट्स अ न्यूट्रल प्लैनेट, तो ही बिकम्स ए बैलेंस बिटवीन बोथ। Both, right? तो वो सोलर इक्लिप्स को वो ठीक करता है। सैटरडे के दिन मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस की रिफ्लेक्शन देके उसमें वो जो है मस्टर्ड ऑयल डाल के चेहरा देके, फिर उसमें एक क्लोव डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दें, तो जिससे जो है काफ़ी बड़ा शनि का जो प्रभाव है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मंडे के दिन फास्ट करें, लॉर्ड शिवा की पूजा करें, तो चंद्र शनि का जो विष योग है उसमें भी इनको रिलीफ मिलेगा। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that yes, you are going through a certain difficult time in your life, but he's recommending for you to wear an emerald, untreated, unheated, good quality stone. Along with that, blind student, any of those, where they have them, you can just go give them education, give them books, just contribute something to help them out, and besides the other remedies that Premji's mentioned, and you are going to see big changes, positive changes happening for you. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos?
लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, जो प्रोफेशनल और फाइनेंशियल जो मैटर्स है वो आपका मेन फोकस रहेगा। कोलैबोरेशन से लोगों के साथ बेनिफिट होगा। थोड़ा माइंडफुल रहिएगा अपनी इमोशनल और अपनी वेलबींग को लेके। कई बार चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली शिफ्ट होती हैं, लेकिन बहुत सारा शिफ्ट होगा आपकी सोशल सर्कल में भी इस वीक में, और बैलेंस बना के रखिएगा अपनी काम और अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी। Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, आपका फोकस जो है रिलेशनशिप के ऊपर होना चाहिए, बहुत आपके पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। कोलैबोरेशन से, पार्टनरशिप से बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। अवॉइड करिएगा ओवर थिंकिंग, अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा इस वीक के अंदर। काफ़ी पोटेंशियल नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके करियर में इस वीक में, और आपकी एनर्जी जो है काफ़ी अच्छी रहेगी, और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत पॉजिटिव रहेंगी। Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, थोड़ी अटेंशन अपनी हेल्थ और अपनी डेली रूटीन्स के ऊपर दीजिएगा। फाइनेंशियल डिसीजन को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करिएगा। आपका काम का एनवायरनमेंट को थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। फोकस रखिएगा पर्सनल डेवलपमेंट पे, अपनी सेल्फ केयर के ऊपर भी। रिलेशनशिप जो आपके कुलीग्स के और अपने सुपीरियर के साथ, उसमें थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है। Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, एक्सपेक्ट करिएगा सर्ज आपकी क्रिएटिव एनर्जी के अंदर। फोकस आपका एक्टिविटीज़ के ऊपर होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको खुशी मिलती है और फुलफिलमेंट होती है। रिलेशनशिप खास करके बच्चों के साथ और यंगर लोगों के साथ बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। फाइनेंशियल गेन्स पॉसिबल है आपकी क्रिएटिव साइड से, जो भी आपने पहले एफर्ट लगाए हैं। थोड़ा टाइम दीजिए अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन और अपनी इमोशनल वेलबींग के ऊपर भी। This is from Mr. KPS. His date of birth is November 3rd, 2000. Place of birth is New Jersey, and time of birth is about 8 in the morning. This is a concerned parent who say he was a good student but did not pay attention to education for the last 2 years. He is also looking for a job but having a tough time finding one. They want your help to know what does the future look like for him and any remedies that you recommend for him to do, or as parents they can do for him. देखिए मिस्टर केपीएस, अगर आप 3 नवंबर 2000, इनका फ्री होल्ड न्यू जर्सी 8 AM का बर्थ है। इनका स्कॉर्पियो राइजिंग है, मून साइन है कैप्रिकॉन, वृश्चिक लगन है और मकर राशि है इनकी। वृश्चिक लगन का लॉर्ड है मंगल, राशि का लॉर्ड है शनि। जी। दशा राहु की चल रही है। राहु की दशा खराब नहीं है, लेकिन राहु की अंतर दशा में शनि आ गया 2023 से, जो कि इसी साल जो है फरवरी में वो ख़त्म हुआ है, और अभी इनको राहु में बुध चल रहा है। अच्छा। वो भी इतना पॉजिटिव नहीं होता। बुध इज़ ऑल्सो एनिमी टू मार्स। तो बेसिकली डिस्ट्रैक्शन, आप पूरी तरह मेंटली फोकस नहीं रहते हैं। राइट। आपका ध्यान दूसरी चीज़ों पे रहता है। आप जॉब करने की कोशिश भी करते हैं, अगर जॉब मिलेगी तो जाएगा नहीं इंसान, या मिलने के बाद उसको पाने की एफर्ट नहीं करेगा। तो हमारी डिस्ट्रैक्शन जो है बेसिकली वो पूरी तरह से हिल जाती है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिस्ट्रैक्शन। तो टाइमिंग जो है इनकी 2029 सितंबर तक वाली थोड़ी सी ऐसी सी है। तो थोड़ा सा इनको अपने राहु को बैलेंस करना चाहिए, और जिससे इनकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाए, क्योंकि ये इनका पीक टाइम है। बट 2029 के बाद ही विल सी द बेस्ट टाइम। आगे चीज़ें काफ़ी बेटर हैं, और नौकरी में भी, करियर में भी सक्सेस मिलेगा इनको। So, Premji, any remedies for him to do to be able to pay attention to things and hopefully get a better job? देखिए, एक तो इनको कोरल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का। उसको एक पेंडेंट में ट्यूसडे के दिन गोल्ड के अंदर गले में धारण करें, जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। दूसरा, इनको जो है हनुमान चालीसा करते रहना चाहिए ट्यूसडे और सैटरडे के दिन, या पेरेंट्स में से कोई करे। एक ऑरेंज कलर के पंचमुखी हनुमान जी ले जाए, उनके पैरों में सिंदूर चढ़ाया जाए जैस्मिन ऑयल में मिक्स करके ट्यूसडे और सैटरडे के दिन। उससे काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। राहु दशा चल रही है, तो होमलेस लोगों में थर्सडे के दिन वंस ए मंथ या किसी को खाना भी डोनेट कर दिया जाए, तो उससे काफ़ी सारी हारमनी इनकी लाइफ में आ जाएगी। Thank you, Premji, for telling him what he can do, or, like he's advising you till 2029. It's a little rough time for him. However, after 2029, he will find the ideal job. In the meantime, he needs to wear the emerald, like Premji has mentioned, untreated, unheated, good quality. There's a small mantra to do, and he needs to stay vegetarian. Along with that, he needs to do Hanuman Chalisa on Tuesdays and Saturdays, besides the other things Premji has mentioned. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius?
सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, आप लोगों को फोकस अपनी होम लाइफ और पर्सनल फाउंडेशन के ऊपर करना है। थोड़ा फैमिली मैटर्स का ध्यान रखिएगा, इम्प्रूव करिए अपनी जो आपका जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है खास करके। करियर ग्रोथ आएगी, आपको थोड़ी सी आपको जो अप्रोच है थोड़ी पॉजिटिव करनी चाहिए। अवॉइड करिएगा, इम्पल्सिव मत रहिएगा किसी तरह का भी मेजर जो डिसीजन लेते समय इस वीक में। और थोड़ा अपना टाइम ऑफ लीजिए, रिचार्ज करिए अपनी एनर्जी को। Capricorn. कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, कम्युनिकेशन एंड जो ट्रैवल है वो हाईलाइटेड रहेगा। थोड़ा माइंडफुल रहिए कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपनी थॉट्स को। सोशलाइजिंग से आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। करियर रिलेटेड जो डिस्कशंस हैं वो आगे चल के एडवांसमेंट में बदल जाएंगी। आप नए वेज निकालेंगे, डील करेंगे अपने काम को, स्ट्रेस को। Aquarius. इक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, जो फाइनेंशियल मैटर्स है उसको थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है। आपको फोकस अपना बजटिंग और अपनी रिड्यूसिंग जो अननेसेसरीज जो इनके एक्सपेंसेस हैं उनको कम करना चाहिए। ये अच्छा वीक है आप लोगों के लिए अगर आप किसी तरह का भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, खास करके अपने करियर के बारे में। अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी वैल्यूज़ को थोड़ा सा के ऊपर भी थोड़ा फोकस रखिएगा। फ्रेश जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो आपको काम में, आपकी लाइफ में आगे चल के आपके चैलेंजेस को सॉल्यूशंस में आपको हेल्प करेगा। Pisces. पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, आपका जो फोकस है सेल्फ केयर में, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर होना चाहिए। ये अच्छा वीक है आप लोगों के लिए कि आप एक्सप्रेस करें अपनी क्रिएटिविटी को। कुछ लोग जो हैं काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने, खास करके अपने रिलेशनशिप्स को लेके। अपॉर्चुनिटीज़ आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे काफ़ी ग्रोथ दिखेगी, राइज भी करेगी। थोड़ा माइंडफुल रहिएगा अपनी बाउंड्रीज़ और अवॉइड करिएगा ओवर कमिटिंग को। Thank you, Premji. You came to the show, help all the viewers understand about the small changes can make big efforts for them with the simple remedies you gave. और दोस्तों, that was it for today. लेकिन जाने से पहले, if you have any questions related to our show or you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.